ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। हाँ हाँ ठीक है तो तुसी की समझदे हो उदों तुसां ओदे ते सोचिया ही नहीं गौर ही नहीं कीता इस वास्ते समझाना पिया ये ईमान नहीं ये अकीदा जेड़ा तानू मिलिया है। ईमान वाले लोग फौरन उधर नूं जांदे ने समझदे ने कि अल्लाह ताला इथों बोलन दिया मैं भी इधर जावां। चीमा साहब गल्लां तुसां दसियां ने पर गल्लां दा सोर्स नहीं दसिया मैं बार बार पे पुछना ओ मेरे भाई जदों एक बंदे ने पहला बयान कीतियां ने ओ भी अल्लाह दीयां गल्लां सन। नहीं ये तो दस छड़ो भी अल्लाह ने तुहाडे नाल गल्लां हुण तुसीं तवज्जा कर लोगे यही तो कुराने विच दस्सिया वे ओ आंदे ने अल्लाह सोहणिया सानू पता नहीं चलदा गां किहड़ी है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਗਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤੀ ਸੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤੀ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ 0/0 ਹੈ। ਆਪ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 0/0 ਹੈ। ਤਸਬ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਜ਼ਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਟਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ख्वाब ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੱਚਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਖਾਤਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ख्वाब ਸੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਫ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਸੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਮਲ करे जिस तरह तलीम है ये नहीं कि अमल ना करे ते अहमदियत सच्चा है कि मिर्जायत सच्चा है। इस गल तो तुसी दोज़ख च गए ते तुहाडे गुनाह दा जिम्मेदारी मैं ले लांगा। और दसो अच्छा चीमा साहब अहमदियत सच्ची है कि मिर्जायत सच्ची है? मैं तारक साहब आखिया मैं किसी इंसान को पुछ के नहीं हुण रास्ता बदला मैं अल्लाह को मिर्जा बशीरुद्दीन मेरा ईमान अल्लाह ते लोकां ते नहीं। अच्छा मेरा ईमान अल्लाह ते वे लोकां ते नहीं मैं लोकां कोल क्यों पुछां? चीमा साहब आखिरी गल ते भाई बहुत अच्छे ठीक है इंसान ते मेरे मगर इंसान ने ना गल सुनो ना धोखा कर सकने आ झूठ बोल सकने आ मकर कर सकने गल तो सुनो ना मैं ते अल्लाह कोल पुछा जेड़ा सब कुछ जानदा है क्योंकि मरण तो बाद मैनू हिसाब देना तानू ते नहीं देना। चीमा साहब गल मैनू अल्लाह ताला मैं चलो फिर मैं दुआ करना जब्बा साहब दा नाम लेके दुआ करना
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਕਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫਾਸਿਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਫ ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੱਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਮਕਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਮਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀ ਠੱਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਠੱਗ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਰਬੇਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਠੱਗ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਮਾਮਦੀਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਚੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੱਭੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ 54 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਲਾਮ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਰ ਸੀ। ਮਕਾਰ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਠੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਸਕੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗਾਇਬ ਚੋਂ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਆਓ ਯਾਰ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ यार वो मेरा तो मेरे अल्लाह का मामला है, ठीक है। अपनी सलाह करनी है या अब अमर नज़ीर साहब मेरा काम सी तानू दा पैगाम देना, मैं हुज्जत ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਮ ਖਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੂੰ 0/0 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਾ ਹਦੀਸ ਚ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ, ਜਿਸ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੁਰਲੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੱਟ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਪਰਾ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਰੂਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਨਹਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਰੂਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਕੈਬਰੇ ਡਾਂਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੈਬਰੇ ਡਾਂਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਦੀ ਇਹ ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੇ
ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇतना ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜਾਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਾ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮੁਕਾਲਮਾ, ਕਰੋ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਾਲਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਦੁਆ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਦਦ ਜੀ ਕਰਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਸਰੂਰ ਕੀ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਚੀਮਾ ਜ਼ਾਤ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਮਦ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇਤਾ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਚੜੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਚੀਮਾ ਮਦਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਲਕ ਸੁਣੋ। ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਉਹ ਤੇ ਛੁਰੀ ਸਹੀ। ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ਿਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਕੇ ਹੋ। ਬਾਏ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੋ। ਛਪਾ ਗਏ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਬ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਗਾਇਬ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਣਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਫਤ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला ਇੰਨੀ ਜੁਰਅਤ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਮੁਖਾਤਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਰਾਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं वो हमेशा मतलब खलीफा जी कहते ने जंबा साहब ने पूछे है पहले खलीफा जी को अपना मुजद्दद होने का दावा करन तो, क्योंकि उन्होंने तो यही स्टैंडर्ड है ना कि पहले पूछना चाहिए कि मैं इजाजत हिदायत है। कश्मीरी साहब भी ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਸੂਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬੂਤ ਛੇਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜੰਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਮੁਜੱਦਦ, ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੁਜੱਦਦ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਰਕ ਲੈ ਸਾਹਿਬ। ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਕਾਇਦ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। यानी मिर्जा साहब कह रहे हैं मुजद्दद दा मुनकिर मुजद्दद दा मैं ऐसरी रट्टा लगा रहा है कि मिर्जा साहब ने रट्टा लाया मुजद्दद दा।
ਲੇਕਿਨ ਖਲੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾਨ, ਮਹਿਦੀ ਆਖਰੁ ਜ਼ਮਾਨ, ਖਾਤਮੁਲ ਖੁਲਫਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 0/0 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो कुरान थोड़े वास्ते, कुरान नू ते मान लो। लोगों को वो काम करने के लिए क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? नहीं ये कुरान नू बस किताब मनी है, अल्लाह दी किताब है, बाकी पढ़ रखो है। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? यार आमिर साहब कह लो एक जबरदस्ती है, दो मलक त्रै मलक हो गए जी। ये किसी से जबरदस्ती किसी को ये बात मनवाना है कि ये मान लो, दिमाग खराब है आपका, होश में हो यार। मैं ये नहीं किया तुसी मान लो, मैं नहीं क्या 2 दिन हो गए थोड़ी ये गल अलग तो लेंदी नहीं पे, कह के थक गया भाई। मेरी मर्जी, मैं सुबह मनांगा, दोपहरी इनकार करांगा, शामी फिर मनांगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? मैं नहीं किया ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ मान लो। मैं क्या जड़ियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ मैं माफी कीती है, मैं जाना वो जाने, आप कौन है बीच में ये बताए? मैं मजलूम ਦਾ मैती मजलूम दा उन्हां कोल जाके करो जे को करना ने, जाओ उन्हां ने को सपोर्ट करो। आखिर रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। नहीं सवाल ते पूछने ही कोई नहीं, मैंने कल ही पूछना है। ਤੁਹਾਡੇ को तो वीटो कार्ड है, वीटो कार्ड दिखा के आगे निकल जाओगे। आई एम मुस्लिम सरकारी लब्बैक कंपनी, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, मेरे को कार्ड है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਲੀਜੇ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वल नियामत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ लब्बैक ਸੀ, अल्लाहुम्मा ਉਹਦੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵੀ ਇਹੀ लब्बैक। ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਲੱਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਲੱਬੈਕ। ਉਹਦੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? तो मैं की करा कहना सी कि मैं कहना जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, 1101 ਵਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨ ਕੀ ਹੌਲ ਬਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਲ ਬਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। रमजान खत्म हो गया है, तुसी आजाद हो गए हो, आ गए हो। मैं तो कहना या अल्लाह 1 महीने का और रमजान इकट्ठा भेज दे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹਾ ਜੇ और रमजान दी ते ईद दी खुशी ते है, पर अगर हयात रही, अल्लाह नू मंजूर है, अगर हयात होई 11 महीने सन बर्दाश्त करना होना। फिर नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ तलत साहब मेरा एक सवाल है, अगर अमर मैं माफी चाहना, मैं सवाल मैं आंसर जवाब देना खत्म करता है। नहीं, मेरा सवाल है सर, मैं जवाब देना जनाब खत्म कर देता है, मैंने जवाब आंदे ही नहीं, मैं नहीं जवाब मैं आंदे ही नहीं। ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ तारक चौहान साहब ये क्या है कि मैं चीमा साहब ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ क्योंकि ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਬੇ ਆ ਖਲੀਫਾ ਦੇ। ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਆ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ नहीं मान रहे चीमा साहब ਨੂੰ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पहले बंदा आ गए, पहले बंदे ऐसे अकल वाले आ गए, ऐसे इल्म वाले आ गए, खुद मंदे नहीं। मैनू कह रहे तुसी क्यों नहीं मंदे? दसो जवाब दो जी। नहीं ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ और यार माफ कर दो जी आजादी साहब, कोई ऐसा कोई इल्मी अकली गल करो यार। अकल इस्तेमाल करने वाले ऐसे होंदी है, इसको अकली गल कर लो। तुसी क्यों साड़ी जबरदस्ती है? मेरी मर्जी है, मैं नहीं मंदा दी, जाओ करना है करो। दसो ਨਾ ਮੰਨੋ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਨੂੰ। किन्ने गाल? मैं कोई गाल नहीं कढ़ी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ। मैं पागल नहीं किया, मैं उन्होंने ये जरूर किया है कि इन्होंने नफसियाती अस्पताल चेक कराओ, अगर ये ठीक हो तो मैं सजा दी जाए। ਆਹੋ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। पहला नबी मैं तकिया है जरा कह रहा है राती जलजला आया है, सुबह पहले मैंने एक दिन ख्वाब आ गई सी। वो तेरी ख्वाब नू की करिए भाई, आई की जैसी की करिए, ना फायदा ना नुकसान। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? 2 ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣਗੇ, 2 ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਅਜਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਵਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਲ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਆਮਤ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ औलाद दर औलाद ट्रांसफर हो रही है, ये हौसले नाल तकलीफ लेनी है। मिर्जा साहब जी प्लीज हौसले नाल लिया करो, इतनी जल्दबाजी नहीं किया करो। मिर्जा साहब जितनी जल्दी लोगे मिर्जा साहब जी तकलीफ, इतनी प्रॉब्लम भी रहोगे। हौली हौली लिया करो, खत्म होने वाली तो है नहीं है। ये इलाज बीमारी लगी है स्वान, ये खत्म नहीं होगी। ये थोड़ी औलादा नालों नाल जाएगी। औलादा ना 100 साल बाद अगर दुनिया कायम रही ऐसी नहीं होंगी। थोड़ी औलादा थे लगे मिर्जा साहब कहते सच्चे, मिर्जा साहब कहते सच्चे। ये तकलीफा लंबिया, ये थोड़े खानदान तक जानी नस्ल आपको। तलत जी एक बात सुन लीजिए। अभी आए हुए थे चीमा साहब, कह रहे थे कि जोरदार एक आवाज आया जिसमें ये था अल्लाह पाक की तरफ से कि सुनो, लोगों को बताओ अहमदियत सच्चा दीन है। ये अभी अभी बता के गए भाई। मुझे ये बताएं कि क्या हमने उनकी आवाज से माना है अहमदियत को? हमें तो बिन बताए अल्लाह ने बताया हुआ, इसे 20-25 साल पहले बता दिया था। हमें तो पहले पता है जी, उनको लेट हो गया। उन्हें बताएं, आपको लेट पता चला है, हमें पहले से पता है। बेचारे कोई आवाज आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लेट हो गए हैं, उनकी खबर लेट हो गई है। मुझे तो 24-25 साल पहले का पता है, उन्हें आज पता चला है। मैं मुझे मिले ना, वो अगर वो मिलेंगे तो मैं उनसे अफसोस करूंगा कि आपकी खबर लेट हो गई। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ तीर मारिया है? नहीं, वो तो ने तो मुसलमानों को नहीं कहा। वैसे एक बात की है जनरल बात कहते हमारा दीन सच्चा है, तो वो हम कह रहे हैं सच है। उन्होंने कहा है कि ये जो नहीं, उनका दावा ये है कि मुझसे पहले नहीं किसी को पता था इस्लाम सच्चा दीन है। ये रियाज में ये दावा तो नहीं है क्या यार? कोई तो खुदा का खौफ करो यार, कोई अकल की तो इल्मी बात करो। जो मर्जी अपनी मर्जी से मुखालफत में मतलब निकाल रहे लेते। मिर्जा साहब ने कहा इस्लाम सच्चा है। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उनको जोरदार आवाज आया कि भाई सुने, आप भी उनकी आवाज सुन ले जाके। उन्हें कहे भाई स्पीकर में रिकॉर्ड करा के मुझे भी सुनाओ, सुने जाए। उसके इस जो है गुफ्तगू से जो अल्लाह से हो रहा है, आपको क्यों परेशानी है? मुझे नहीं, आप परेशान है। मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, जिक्र भी नहीं। आपको प्रॉब्लम लगी हुई है। मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आप गुस्सा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप गुस्सा ना भी करें, मैं भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। आपको उनकी प्रॉब्लम क्या लगी हुई है जी? मुझे ये है कि वो बेचारे को जब हम कलाम है और कसरत से जब गुफ्तगू हो रही है, गाड़ी में भी इनको जो है अल्लाह पाक ने समझाया। तो भाई आप मान लेना, पीर साहब ऐसा ना करें, आप नाजायज ना करें। वो बेचारा आपको इतने मुश्किल में समझाता है, आप ऐसे कौन सी मिट्टी के बने? आप फिर भी नहीं मान रहे यार, मान लो उनकी बात तो सुन लीजिए ना भाई। नहीं, आप मान ले उनकी बात, मान रहे हो? ये देखें, जब हम बात करते हैं चीमा की कि उनको बेचारे जब आप कहते हैं, जब हम कहते हैं, पीर साहब आप बताएं, आप उनकी बात मान रहे हैं चीमा जी की? हाँ भाई, उसको इल्हाम हो रहा है बेचारे को। ओ यार, उसको क्या हो रहा है मुझे नहीं लेना देना। आप बताएं, आप मुझे तब बोले कि आप नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों हैं? आप कह रहे हो मैं तो इनकार कर रहा हूँ, तो मान लो, क्योंकि हम मिर्जा साहब की मुखालफत में ये बात आपसे मनवाना चाह रहे हैं। तलत जी, और मुझे ना पीर साहब ये और दूसरे एमपी से बात करें, अल्लाह का नाम है। अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं, मेरा टाइम भी, सब लोगों का टाइम जाया कर रहे हैं। देखिए, आपका कीमती टाइम है, अच्छा है आपने टाइम दे दिया। वो बेचारे ने कहा यहाँ
बिल्कुल कहते हैं जोरदार चलो जी मैंने आवाज है। मान लिया जी, पीर साहब आपने इसरार किया, मैंने मान लिया। और दसो ये है, ये होती है ना बात। अब खामों का मैं डरना मान नहीं लिया कि जी, उसको- मैं मान लिया। और जी। दसो ये एक और बात आपको मालूम है कि कलमे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों है? जो उन्होंने कहा है वो भी मान लिया। और बताएं। ये देखे आप जिद कर रहे हैं, आपको पता है या नहीं पता? मैं कह रहा हूँ जो चीमा साहब ने कहा है मुझे वो ठीक है, मैं उस पर ईमान ले आया। और दसो आपको मालूम है ये बात अभी जो ये कलमे इतराज में शुरू करते हैं कि क्यों ईमान ले आओ और नया कट्टा खोलो। अभी पहले कह रहे थे ईमान क्यों नहीं ला रहे, और अब नया कट्टा खोलो कि आप ईमान क्यों ले आए हैं। शुरू हो जाए, शाबाश। नहीं तो फिर खलीफा के देखिए फिर खलीफा को तो खारिज हो जाता ना अगर इस पर ईमान ले आए। और शुरू हो जाए शायद। अपना काम जारी रखो। फपे कुटनियां काम जारी रखो अपना। राजा साहब नहीं तरह जी आप इतना नाराज क्यों है भाई? यार पीर साहब कोई चले अक्ल की पीर बात साहब, होती है। पीर साहब ये मीर मान साहब लो भाई बाज़म, तो भी इतराज, इनको जो ना इनकार जोसेफ करो साहब तो ने भी आगे बड़ा इनकार। तोता अभी लगाया है, आप तो इनको उसे थोड़ी ना टाइम दे दें मलक साहब को। ओ इनको सुने बड़ा जी, तोता आगे सुने। ओ लगाया भाई, ओ तुमने। भाई, ओ भाई, ओ भाई, आप मतलब पहले कि मुझे वहाँ सब वहाँ वो मनवा रहे थे। जोसेफ, पीर साहब एक मिनट प्लीज, मैंने इजाजत मांगी अच्छा प्लीज। ठीक है, मैं आप पहले बगैर इजाज़त मुझसे से बात कर रहा था। मनवा रहे थे कि उनको मान लो। जब मैंने आपके सामने ऐलान कर दिया कि मैं मान लिया है, अब अब ठीक है, दूसरी तरफ आ जाओ, क्यों माना है। शुरू हो जाओ, शाबाश, शुरू हो जाओ। मैंने नहीं पूछा मेरा भी एक नहीं, पूछूंगा सवाल भी है नहीं। अगर आपने सवाल मान आ लिया गया, उधर सवाल आ गया जी। क्यों माना है, तो बताइए। हो गया ना। सवाल जवाब। अच्छा वो जोसेफ के ब्रोड पे आपको गुस्सा चढ़ा हुआ था, उन्होंने जो है पानी पिला पिला के आपको मारा। आप तो प्यार से बहुत बात मारा नहीं, मैं यार। गया वो हुआ था बता उनको, रहे मैंने थे बोला टाइम दे दे तौबा मलक साहब को। मैं मोहम्मद मलक साहब के सल्लल्लाहु पीछे अलैहि गया। वसल्लम सच्चे नबी नहीं है, कुरान सच्ची किताब नहीं है। आपके मुसलमानों ने उनसे इत्तेफाक किया, बस जोसेफ सच कह रहा है, ईमान वाला, सच्चा मजहब वाला, सच्ची बात करता है। सरफराज साहब आए ने वेखो। हाफिज साहब आपको जोसेफ साहब मुबारकबाद सारे मुसलमानों को मुस्लिम इत्तेहाद सरकारी मुबारक हो। मलक साहब ने प्यारे आए ने, सरफराज साहब अच्छा आए मैं ने, आखिरी ईमान बात कर को- देता हूँ मलक जी, इजाजत दीजिए। बात यह है को चीमा जी है ना, उनको अल्लाह पाक ने जब गाड़ी में आ रहे थे, अल्लाह पाक ने उनको समझाया कि कलमे में मोहम्मद का नाम क्यों है। देखो कितने बड़े प्यार से, और आज तक वो किसी को भी नहीं समझाया। देखिए मुकालमा कितने प्यार से हो रहा है। जी जी बिल्कुल ठीक आपका जी। अच्छा मैं खामोश रहता हूँ, नाराज ना हो। वो जोसेफ जी वो उन्होंने यार ऐसा करे यार, वो क्रिश्चियन है, वो बड़ा जोरदार से तो चपेटे मारते हैं, हम तो प्यार से वो ना वो सच्ची बातें कहता है यार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का नबी सच्चा नहीं मानता है, झूठा मानता है। तो आपको नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं गया था, उसने मेरे सामने बोला था, कोई ऐसी बात नहीं। मुबारक हो आप ये मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि थोड़ी सी वसल्लम शर्म पे, है तो कर लो। जबकि लेकिन बातें वो बेचारे सच्ची ने कहता एक है ना। मर्तबा भी नहीं कहा। सच्चा मजहब है उनका, दीन है ही सच्चा, उनका दीन सच्चा है, कोई शक नहीं। अच्छा देखें तलत जी, उस बेचारे ने एक मर्तबा भी, उनका दीन सच्चा है, तीन खुदा सच्चे हैं, और उसके बाद वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नऊजुबिल्लाह सच्चा नहीं मानते, झूठा मानते हैं। ये भी उनका अकीदा सच्चा है। कुरान झूठा है, तौबा नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी सच्चा है। वो है ही कौम ही सच्ची है, सच्ची कौम है। तलत जी सुन लीजिए प्यारे भाई, सुन लीजिए। एक मर्तबा भी उस जोसेफ ने नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया। जितनी बार आपने क्रोध अगर दिखाया, किसी में शर्म है, उसके ऊपर कुरान की कसम, क्या मसीह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी रसूल मानते हैं? लेकिन जितनी बार क्या आप कुरान कह रहे हो कि मजीद को अल्लाह की झूठा किताब झूठा मानते हैं? झूठा झूठा कह रहे शर्म हो कर लो, नबी किसी में अलैहिस्सलाम शर्म को, है तो ईमान की बात भी कहने की होती है, कर लो। कहो कि नहीं मानते हैं और आप उनके साथ खड़े हुए, माशाल्लाह बड़े इल्मी लोग हैं वैसे आप। अब देखें पीर साहब आपको इत्तेहाद मुबारक हो, मिर्जा साहब की और जमात अहमदिया की देखें तलत जी, मुबारक हो। आपकी यही तो आपको बुग़्ज़ बेबसी है, मुबारक हो, अपने आपको ब्रोड में भी बुग़्ज़ बेबस हो मुबारक हो जी, और बुग़्ज़ चिल्लाते हो, यहाँ माशाल्लाह, पर भी बुग़्ज़ चिल्ला रहे हो, सुनते किसी की नहीं। सुन तो लीजिए ना प्यारे भाई। बात यह है कि उससे आपने 1.5 घंटा ज्यादा बात किया। एक मर्तबा उन्होंने नबी के बारे में यह नहीं कहा माअज़ल्लाह वो झूठे हैं, कुरान झूठा है। आपने 1000 बार कहा, 1000 बार कहा। ये तो आप कह रहे हो, उसने तो कहा नहीं, एक मर्तबा भी नहीं कहा। ऐसा जुल्म मत अगर करो। अगर 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 नबी इधर अलैहिस्सलाम और कुरान से आपको इतना जिद क्यों है? एक मिनट, अभी जितने बंदे हमारे पास बैठे हुए हैं, अगर वो जो झूठ बोलेगा वो हराम की औलाद होगा, जो झूठ बोलेगा। क्या इनमें से किसी को पता नहीं है कि ईसाई क्रिश्चियन जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी रसूल नहीं मानते हैं? जो झूठ बोलेगा वो हराम की औलाद होगा। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई।
मिर्जा मेरी साहब पे बात टॉपिक पूरी रखो ना करने दे, आगे। नहीं या मुझे कहे यहाँ से निकल जाओ। ना ना ना, और ये दूसरी आप बात यही रहे। देखे ना करे पीर साहब, मुझे जाने दे, फिर ऐसे मैं ना करे। कहता हूँ मेरी भाई बात आप पूरी बात होनी, आपकी करें। इतनी जरूरी बात है कि आपने मेरी भट्ट अपनी बात रुकवा के साहब आपने अपनी बात करनी है। भट्ट साहब आपने नहीं सिर्फ बोलना, पीर साहब बोलने तो मुश्किल भाई नहीं, मैं आपने नहीं आपको बोलना। कह रहा हूँ ठीक कि है भट्ट आप साहब, बोलिए, आपका टाइम है। बस जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 1 बात मिनट ये से है, ज्यादा मत बोलिए। नहीं बोलूंगा, अभी 1 मिनट टाइम रख ले। जी जी। जो मैंने बात की है कि आप सब जो बैठे हुए हैं अपनी अपनी बारी में ये सवाल का जवाब देंगे। किस किस को ये नहीं पता कि मसीह जो है ईसाई यानी क्रिश्चियन, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल नबी नहीं मानते हैं, झूठा मानते हैं मिन ज़ालिक। दूसरी बात, वो कुरान को आसमानी किताब नहीं मानते हैं कि कुरान आसमानी किताब। किस किस को नहीं पता है या बता देना जी, मैंने कसम डाली अपनी अपनी बारी में सब ने बताना है। जो नहीं जवाब देगा वो भी हराम था, और जो जवाब नहीं दे वो हराम का। अभी अपनी अपनी बारी बता दो, किस किस को नहीं पता जी। आपका 1 मिनट अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया, आप जवाब दे दें सिर्फ मेरा सवाल का। आप कहें आपको हाँ ना में जवाब देना, आपको इल्म है जी। मुझे 1 मिनट दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल, आप 10 मिनट ले लें, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दें पहले। हाँ हाँ, सुन लीजिए, अब खामोश रहिए। देखिए तलत जी, हमें मालूम है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते। हमें ये भी मालूम है कि वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। ये दोनों बातें हम जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसने आपसे गुफ्तगू करते हुए एक मर्तबा भी नहीं कहा कि आपका नबी माअज़ल्लाह झूठा, इस्लाम कुरान झूठा। एक मर्तबा। आप इसी को वर्द कर रहे हैं। भाई क्यों? भाई इतना हम तो जानते हैं। सुन लीजिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना प्यारे भाई। अच्छा पीर साहब, करे आप। हाँ, आराम से ना भाई, मेरा 1 मिनट पूरा हो जाए। ठीक, उन्होंने एक मर्तबा भी नहीं कहा। आप बार बार क्यों कह रहे हैं अपने नबी को कि वो झूठे, इस्लाम झूठा? भाई उसने कहा ही नहीं। हाँ, वो नहीं मानता। भाई कुछ बातें होती हैं पर्दे में की जाती हैं। आप जो है वो बिल्कुल बेअदबी से बात कर रहे हो। उसने तो ऐसे बेअदबी की नहीं। दिल में वो भले मानता हो, भले कुछ भी करता हो, लेकिन आपसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतनी सी बात है। अभी बताइए आप। पीर साहब, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आपको पता भी है कि वो ये जो ईसाई भाई हैं, मसीह हैं, ये अल्लाह की किताब को अल्लाह की किताब नहीं झूठी मानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी रसूल नहीं मानते, झूठा मानते हैं। तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये मैं उनका अकीदा बता रहा हूँ तो इसमें आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके यारानगे टूट रहे हैं। आपने मसीहों के साथ इसलिए यारानगे बनाए हुए हैं कि वो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ है। जमात अहमदिया के इसलिए ख़िलाफ़ है कि हमने उनके खुदा को मार दिया, तुम्हारे आपके रसूल नबी को मार दिया है। आपको अपनी तकलीफ़ है कि हमने आपके नबी रसूल जो आप इकट्ठे हुए हैं, आपकी दोनों की मजबूरी है। बुग़्ज़ अहमदियत में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको भी पता है। जब हम आपके सामने जिक्र, आप वो भी कहते हैं जिक्र मत करो, हमारे यारानगे टूट जाएंगे। आप भी कहते हैं ये बात मत बोलो, हमारे मुसलमान बात उनको पता चल जाए कि हमारे यारानगे टूट जाएंगे। वो यार यारानगे बढ़ गए खड्डे में। अपना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बड़ी नबी लड़ाई सच्चा रसूल, यार बात करने दोगे? मलिक साहब, ਅੱਜ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ठीक है जी, पट रखो तुझे। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੇ ਖਵਾ ਕੇ ਜੀ। बोलो जनाब। तालत अंकल, क्या हाल है? ठीक है आप? फिलहाल ठीक है जी, और तुम आ गए हो, शुरू हो जाओ। नहीं तालत अंकल, आप हर टाइम बाद शार्ट होते हैं, क्या वजह? आपका मीटर हाई बार हाई होता है क्या? आप जैसे मुझे तो फट जाना चाहिए। आप जैसे शार्ट पीछे करंट आ रहा है 440 वोल्ट का। हमारी जो तारे हैं वो ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ठंडे कूल ने हसन भाई कितने प्यार ना गल पे करते ने। मलिक साहब तुसी गुस्से ना करते पे की हो गया? पहले अंकल जी भाई मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा अच्छा अहमद भाई पता की वजह होनी ने उम्र का भी तकाजा होता है, बुजुर्गों को साढ़े अंकल हम साढ़े। मैं तो आपसे खुदा की कसम प्यार से बात कर रहा हूँ। मेरा इसी तरीके का निज़ाम है, मैं इसी तरीके से बात कर रहा हूँ। एक इंसान की आदत होती है, ये आदत है मेरी इसी तरीके से। देखें अहमद भाई, जब जब बंदा मौत के करीब जाता है ना बूढ़ा बुढ़ापे में, तो फिर ऐसे का होते हैं। वो तो उम्र का भी तकाजा। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। अल्लाह करे ये जल्दी हदायत के रास्ते पे आ जाए।
और जो दिल के अंदर भोगस है वो निकल जाए। वैसे वैसे आपने बात ठीक किया कि मैं जल्दी ईमान पे आ जाऊं, लोगों की मस्जिदों में आगे लगाऊं, छेनी और हथौड़ा लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मंत्र मिटाऊं, नमाज पढ़ने वाले को मारूं, आप उनको छोड़ें, कुरान वो जो पढ़ने वाले को मारूं, मोटापे उनका कलमा पढ़ने वाले को मारूं। ये ईमान है। मैं यहूदी हो बाप ने जाऊंगा, कितनी मस्जिदें जलाई मैं थी? यहूदी हो जाऊंगा। आपके ऐसा बाप ने ईमान है, कितनी मुझे मस्जिदें जलाई थी मलिक साहब? आया ईमान अतयात को सवाल तो ले लेना मलिक साहब, तेरे प्यो कितनी मस्जिदें जलाई हैं? जनाब इमरान भाई खामोश हो जो। मेरा आखिरी सवाल एक अंकल ना हत्तालाल अंकल मुझे अपनी एक सूरत अल फातिहा सुना दो, एक ते आखिरी 3 सूरतां बस। बिस्मिल्लाह। मुझे तो यार कुरान नहीं पढ़ना आता, मुझे तो कोई सूरत नहीं आती जनाब, आपको मैंने सुनानी है। ललित भाई ये मजाक कर रहे हैं, मेरा टॉपिक से हटके नहीं मजाक नहीं, सीरियस। मेरा एक सवाल है मलिक साहब, आपके बाप तो आप काफिर हो, आपके बाप तो सुन्नत जमात थे ना, तो उन्होंने कितनी मस्जिदें जलाई थी? इमरान भाई माशाल्लाह वो आप में से नहीं थे, वो आप में से नहीं थे। उन्होंने कितनी मस्जिदें जलाई? आपके भाई भी अभी है ना मुसलमान है, तो उन्होंने कितनी मस्जिदें जलाई? मैंने आपको बता दिया ना, आपकी कंपनी में और हमारी कंपनी में फर्क है। माफी चाहता हूँ। नहीं माफी नहीं, बता कर जाओ ना, आपके बाप ने कितनी मस्जिदें जलाई? अपनी कंपनी को सच्चा कहता है, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। छोड़ो उस बात को, आपके बाप आपके भाइयों ने कितनी मस्जिदें जलाई हैं? अंकल जी तलत अंकल, आप कह रहे हैं अपनी कंपनियां को सच्चा, और जिस कंपनी की बुनियाद ही ना हो तो उस कंपनी की क्या उस पे भरोसा करें? मुझे बताएं ना। अगर आपकी हमारी कंपनी की बुनियाद नहीं है तो आपको इतनी तकलीफें पीड़े क्यों उठी है? जिस तरह माँ जब बच्चा जनती है ना, जितनी तकलीफें उसको होती है, उससे 2 गुना ज्यादा तकलीफें आप लोगों को। इसीलिए अंकल जी उसके माँ के पाँव की जन्नत रखी गई है। पीड़ा किस गल दी? ये पीड़ा क्यों हो रही है? सुन, पीड़ा कितने तेरे ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਸ ਅੰਕਲ ਛਾਟ करके हक भाई मैं मलिक साहब मेरे बड़े भाई ने इन्होंने कोई जवाब लेने दियो। अच्छा लो जी बिस्मिल्लाह। तेरे बाप ते तेरे भाइयों ने कितनी मस्जिद जनाब जलाई हैं होने तक? नहीं मलिक साहब तेरे ना करो, ठीक है? अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो केडी रिस्पेक्ट दी थी उन्होंने मेरे बड़े भाई ने। तेरे ना करो, ओके थोड़े आपके ओके सॉरी अगर मेरा कोई लफ्ज अच्छा नहीं, मैं अच्छा अदा नहीं किया, मेरी इज्जत कोई अगर ना भी करे तो मुझे वाले आपके बाप मुझे किसी से जबरदस्ती नहीं। आपके भाइयों ने कितनी मस्जिदें जलाई हैं? मलिक इमरान मुझे ओ जाहिल, मैंने बता दिया है कि हमारी कंपनी जलाने वाली नहीं है। अच्छा मलिक जेल दिलाना को है फिर मलिक साहब औलिया अल्लाह हमारी कंपनी ये नहीं है। अच्छा तलत भाई मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे, एक छोटा सा साढ़े डायरेक्ट आने फतवा ही ला देते ने। हुजूर मुझे एक बात करने दीजिए। तलत जी आराम से मेरी बात सुनिए। देखिए भाई, चीमा जी को अगर वो टेस्ट कर ले और 6/6 निकले कि वो ठीक है, आपने जो ये कहा था कि जहर पी लोगे, क्या वाकईतन आप जहर पी लोगे? मैंने अपने अल्फाज वापस कर लिए, जो चीमा साहब कहते हैं मैं उनको इसी तरह मानता हूँ, खत्म। डर गए, मान लिया हर चीमा साहब को है। देखिए डर गया तलत जी, नया नबी आ गया तलत साहब का भाई जी। तलत जी आप तो बहादुर हैं, आप तो आजाद हो। थोड़े दिन अल्लाह बाप का, अल्लाह ने तो सवाल जवाब बोलना ही छोड़ दिया है, अपनी सुन्नत खत्म कर दी है। ना कोई आएगा, आप तो मिर्जा को भी झूठा मानते हैं, नबी नए को आगे अल्लाह उनसे भी बात नहीं करेगा। हाँ चलो यार सरफराज साहब को मौका दो, मलिक साहब ना गाल कर। बदनसीब कौम विच आ गया तू ईसा, जिले तू बड़ी साइज़त है, मैं इतना गल करता सा। गोल्ड इस कौम विच आ गया। एक सवाल का जवाब दे दो थोड़ा यार, मैं गल नहीं कर साहब तलत अंकल बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूंगा, मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगा। मल साहब एक सवाल का एक जवाब। मैंने मेरा सवाल आपके, मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा।
आपके सब मेरे आपके बने अब्बा जी और हमारे दादाजी खामोश हो जाएं, सब या खामोश हो हमारे जाइए प्लीज। बाप बोलते हैं क्या मैं बोलता हूँ उन्होंने जब आप कितनी बोलेंगे तो मस्जिदें मैं चुप जलाई नहीं हैं। रहूंगा, मैं चुप नहीं होऊंगा। आप मेरी बारी में बोलते हैं, मैं आपकी बारी में बोलूंगा। हमारे हमारे मैं कह रहा अंकल हूँ जी आपके तुम्हारे को आपके छोड़ो हमने यार, तो आपको मैंने बड़ा आपको किया बता हुआ दिया है, देखो मैंने हमारे आपको अंकल मेरी जी बात जो सुन है रहे थे, आपके आप वालिद मेरी साहब बात उन्होंने सुनेंगे कितनी नहीं, मैं आपकी मस्जिदें बात नहीं जलाई हैं। सुनूंगा, आप बोलते रहो मेरी बात। मलिक साहब आपके वालिद साहब हमारे अंकल उन्होंने कितनी मस्जिदें जलाई हैं अभी तक पाकिस्तान में? आपके भाइयों ने कितनी मस्जिदें जलाई हैं पाकिस्तान में? ये बता दो, बस बात इतनी सी है। बोलो बोलो मलिक टाइम है। साहब मलिक साहब आपके अब्बा जान हमारे अंकल उन्होंने कितनी पाकिस्तान में मिर्ज़ाइयों की मस्जिदें जलाई थी? एक मेरा सवाल ये है, अभी माशाल्लाह मेरे ख्याल में आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी मेरा सवाल ये है कि आपके भाई तो माशाल्लाह मुसलमान है ना, चलो उनका कोई तो मसला होगा ना, तो उन्होंने कितनी मस्जिदें जलाई हैं? बोलो मलक और नस के मलक और नस के मलक और नस के बंदे मरे दिन मस्जिदां जलांदे ने, और सवाल तो जवाब ही नहीं है। ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਪਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ हाँ जी बोलो। अच्छा मेरा और एक सवाल है कि दसो सारे दोस्त भाई मेरा कोई गलत सवाल आई? और नहीं सवाल ठीक से लेकिन राम इमरान भाई बोलो तो ना फिर वो गुस्सा नहीं करके ना तुसा बिल्कुल ठीक आख्या कि ओदे और मैं घरदियां ने ओदी फैमिली कितनी ने रिस्पेक्ट ना लाके आपके बाप हमारे अंकल ओए राम ना हमारे भी राम। बाप हैं। चलो ठीक है करो मलिक भाई साहब बोलो तो सही, तुसी बराड़ मलिक साहब आन करियो। बोलो तो भाई सही। इमरान बराड़ अपनी आन करियो अपनी नहीं बराड़ मेरे आन को करियो। सिग्नल नहीं है, मैं अंदर बड़ा है हाथ दे उठे फोन जो मलक कैसर साहब कर देने कैसर साहब आवाज आ रही है? मलक कैसर साहब किधर गए हो? कैसर साहब है वो? कैसर साहब को पूछो यार, मैं जरा ना बिल्कुल मोबाइल बंद होना है तां पे कहना। मलिक साहब आप हमें मौजूद है? मलिक साहब 7 घंटे हो गए ने इस मोबाइल में ते पावर बैंक कोई नहीं रखे अहमद भाई ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ? ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਸੇ ਰੱਖ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮਾਰੇ इंशाल्लाह चार्ज हो जाएगा। हाँ बर्फ है कोई नवी स्कीम कढ़ी जे लेकिन ख्याल रखना जो ठंडा हो जाना ना फौरन चूल्हा तेज करके ना साइड रख देना बस 10 मिनट मारे। हेलो फिर बखरी हुई साइंस हुई ते हली ने अद्धा घंटा बंदा चार्जिंग लावे तो काम नहीं होगी मौके नहीं इमरान साहब इयां करते है जे दा लेके फिर चूल्हे दे उत्ते ना रखदा मैं फोन नु नहीं ओ मलिक साहब आदाई के तुसा मस्जिद चलांदे हो कि ओदे हसन भाई करो बराड़ा ओदे बाप ता माशाल्लाह मुसलमान है ना जी अहमद भाई। हसन भाई बराड़ा ऑन करो बराड़ा ऑन। लेकिन मैं दूसरी मेरी आईडी उस ते देनी नहीं, वो दूसरी आईडी मेरी 5 बजे ऑन होगी। ए ऑन कर लेंदा मैं ऑन कर लेंदा ऑन कर करो फिर ठीक है ओके मैं ऑन कर लेंदा।